एंड जिस बैकग्राउंड से मेरे फादर हैं वो भी इंजीनियर हैं, तो उनको भी था कि हाँ इंजीनियरिंग करेगा एंड देन सिविल इंजीनियरिंग करेगा। सो दैट अराइज एंड वो बहुत डिफ़िकल्ट था बिकॉज एक्चुअली ये भी रीज़न है कि मैंने PCM ली थी बिकॉज दैट प्रेशर वॉज बिहाइंड माई बैक। जितना वो कर सकते हैं उतना वो मेरे लिए कर रहे हैं। अगर उनके पास होता तो वो मेरे को और सपोर्ट कर सकते थे, बट अब वो मेरे को पढ़ा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। कितनों को तो वो भी नहीं मिल रहा, तो मेरे को वो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा पैशन है, अब मेरे को ये फॉलो करना है, चाहे मैं कहीं से कमाऊँ कैसे करूँ, ये मेरे को करना है। कभी भी ये मत ब्लेम करना कि आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट नहीं करा इसलिए आपने पैशन फॉलो नहीं करा। मेरे पेरेंट्स ने लिटरली मेरे को 0% सपोर्ट करा, तब भी मैं यहाँ तक चला गया। Okay, so hello everyone and welcome to another video and welcome to the channel, the Backbenchers Academy by Rohit Verma. So we are back with the second video based on the counseling session, in which today we have two special guests with me, none other than two of my own students whom I've taught in class 9th and 10th, that is Ujjwal and Navraj. And I've called them for a very special purpose. What exactly is it? You're gonna soon get to know. But let's first introduce you guys with both of them. Hello everyone, my name is Ujjwal and I'm 18 years old. So this video is all about how from being an average student or you can say below average student कि कैसे मैं below average student से मैंने अपना करियर पार्ट टेक करा एंड उसको राइट वे में अब मैं लेके जा रहा हूँ एंड कैसे ये सब पॉसिबल हुआ, क्या क्या उसमें रुकावटें आई, जो भी उसमें रुकावटें आई मैंने कैसे उनको फेस करा एंड आगे मैंने कैसे उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करा जो मैंने सीखा एंड देन अब मैं उसे कैसे अपना करियर पाथ लेके जा। Hello everyone, my name is Navraj. I am pursuing BSc Nutrition and Dietetics from MIT University. In this video, I am going to explain you how I opted my career in fitness instead of having many separation from my parents for this career, and still I choose it and wanted to make as a full-time career. Thank you both of you for coming here and sparing up the time अपने busy schedule से time निकालने के लिए. The agenda for today's video, let me just tell you guys, is the fact that I want to show you the student perspective of the career counseling, because in the previous video, if you've seen the first part of this video of career counseling, in which it was just me. If you've not seen it yet, I'm putting the link in the description box. Please do go and watch it once. And in that video, the previous video, it was just me who was trying to counsel all of you. But now I've got two of my own students whom, when I remember these two back in the days when they were in class 9th and 10th, so they were typical backbencher students. जहाँ तक मुझे याद है, typical a proper backbencher student, right? Who was completely filled up with like going with the flow of life. कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है, एग्ज़ाम से महीना, आधा महीना, 15 दिन, 20 दिन पहले पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, पास हो गए, that's all we know. But today when I see them, like after so many years, they might not have achieved a lot so far because it's just a bit of their journey which might be coming up on a greater scale in the coming years. But अभी तक इन्होंने जितना कुछ किया है ना, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी बात यह है कि they know what they're doing. They have the clarity, और वो clarity आना अपने आप में पहला step है. And as I believe, the first step in any process is the most important step. आपने पहला कदम रख लिया, आपको clear हो गया क्या करना है, समझो at least आपको एक direction मिल गई. So they were scalars and now they're vectors, अगर मैं physics के terms में बात करूँ तो, right? So आज हम इस वीडियो में basically discuss करेंगे कि नवराज ने और उज्ज्वल ने जब ये लोग 9th 10th में थे उस टाइम पे, और अब जहाँ ये हैं फिलहाल, अब जो इनका माइंड सेट है उसमें क्या क्या फेस किया है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई हैं, इंक्लूडिंग इट कैन बी द पेरेंटल एस्पेक्ट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ के पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट? क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. बिकॉज इफ़ योर ओन पेरेंट्स और योर ओन फैमिली इज़ नॉट सपोर्टिव इनफ इन योर डिसीजन, देन आपका आधा प्रोसेस अपने आप में डिफ़िकल्ट हो गया है.
क्योंकि आप अब किसी से भी लड़ सकते हो, घर वालों से लड़ना बड़ा मुश्किल है, राइट? खासकर किसी ऐसी चीज़ पे जिसको आप छोड़ भी नहीं सकते, बिकॉज यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, राइट? सेकेंडली, आई टॉक टू देम व्हाट डू दे फील, हाउ दे वर इन क्लास 9th and 10th एंड व्हाट दे आर राइट नाउ। प्रोसेस कैसी रही है अभी तक, कब क्लैरिटी मिली, एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट था जब क्लियर हुआ कि अच्छा ये करना है, ओके दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। फिर उसकी तरफ जो रास्ता गया उसमें क्या क्या हर्डल्स आए, तो इस बारे में बात करेंगे। इट्स गोना बी सुपर फन कॉन्वर्सेशन, सो लेट्स गेट दिस कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड। तो देखते हैं, समझते हैं और सीखते भी हैं, राइट? आफ्टर ऑल वी ऑल आर लर्नर्स। ओके सर, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन राउंड, जिसमें मैं दोनों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, एक एक करके आपको अपने ओपिनियन पुट करने हैं उस क्वेश्चन पे, और फिर डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली कि क्या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी थी, यू नो लाइक पहले और अब क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि जब आप दोनों क्लास 9th या 10th में थे एज अ टीनेजर, राइट, तब लाइफ की तरफ एटीट्यूड कैसा था, क्या सोचते थे, क्या माइंडसेट था, राइट? और अब जब एटलीस्ट ये पता चल चुका है कि अच्छा इस डायरेक्शन में मूव करना है, अब क्या लगता है, अब एग्जैक्टली क्या लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अब हम भी बता पाएंगे कि हमने कैसे सारी प्रॉब्लम्स को फेस करा एंड कैसे उनको ओवरकम करा। सो स्टार्टिंग विद व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, सो एक्चुअली देयर वाज नो लाइफ, या आई कैन से दैट देयर वाज नो लाइफ। सुबह उठे, स्कूल गए, उसके बाद घर आए, खाना खाया, देन अपना ट्यूशन, देन ट्यूशन में जो भी हुआ, देन घर, देन सो गए, देन रिपीट। यही था, ना स्कूल में पढ़ते थे ना ट्यूशन में पढ़ते थे। One semester later. I remember in chemistry I got 2 or 3 marks out of जो भी उनका रहता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सो तब भी लाइफ नॉर्मल थी, चिल थे, कोई टेंशन नहीं थी उस टाइम पे, बस चल रहा था जैसे है। 2 हैं, 3 नंबर है, फाइनल्स में देखेंगे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। And then what happened? I failed in 9. Yes, मेरी 2 या 3 सब्जेक्ट्स में बैक थी। So then वहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ, तब फील हुआ कि यार हम फेल हो गए और आगे निकल गए। Now it's a scenario कि जैसे पहले था, सुबह उठे एंड स्कूल गए, ट्यूशन गए, एंड देन घर आए वापस, देन बैठ गए, नॉर्मली जो चल रहा था रूटीन। नाउ इट्स कि आप सुबह उठे, आपने कार्डियो करा, देन अपनी मील्स बनाई, देन वेट ट्रेनिंग करी। सो नाउ वी हैव अ पर्पस बेसिकली। सो वी हैव अ डायरेक्शन, वी हैव अ पर्पस। सो हमें ऐसे आगे जाना है अपनी लाइफ में, करना हमें है। अगर हम नहीं करेंगे तो उसके भी रिस्पॉन्सिबल हम होंगे, बट एटलीस्ट आई हैव अ डायरेक्शन और मेरे को पता है मेरे को यहाँ जाना है। तो बेसिकली ड्यूरिंग 9th मैं भी आप लोगों की तरह एक एवरेज स्टूडेंट ही था, मतलब बैक बेंचर टिपिकली, कि वही जो टीचर्स के हमेशा आँखों में रहेगा, शैतानियों में, हर जिसमें, एंड पढ़ाई से इतना कुछ नहीं था। रियलिटीज़ की इतना नहीं था मेरे को पढ़ने का, बस पेपर्स के लास्ट में 1 हफ्ता पढ़ लिए तो मार्क्स आ गए थोड़े बहुत, बस पास होने का होता था। एंड बहुत बार ऐसा भी होता था कि मुझे अपने पेपर्स पे पेरेंट्स के साइन करने पड़ते थे टीचर्स को दिखाने के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इतना कोई डायरेक्शन थी ना उस टाइम, पता था कि हमें आगे जाके करना क्या है। ऐसा था कि मेरे जो साथ के थे, मेरे फ्रेंड्स आर्यन चिराग वगैरह जो मेरे क्लासमेट्स थे, तो उनको इंजीनियर बनना था। तो आई ऑल्सो थॉट कि मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। तो उस टाइम ऐसा था, शीप मूवमेंट था कि अगर वो कर रहा है तो वो कर रहा है। 12th में घर वालों ने एक शर्त रखी कि इफ़ यू वांट फ़ोन, तुम फ़ोन भर देंगे या फिर 1 साल की फ़ीस भर देंगे। देन आई ऑप्टेड फॉर जिम। फ़ोन का क्या था, देन जिम मैंने जब वहाँ से स्टार्ट करा, सो मैंने फिर ट्रांसफॉर्मेशन करी। वो ट्रांसफॉर्मेशन देख के सारे हैरान हो गए। सो आई ऑप्टेड कि मेरे पास नॉलेज भी है एंड सब है, तो क्यों ना मैं इसी लाइन में ही जाऊँ, डाइटिशियन के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, ऑनलाइन क्लाइंट्स एंड ये सारा रहे। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और हमारा सेकंड क्वेश्चन एग्जैक्टली तुम लोगों से ये है कि ऐसा कौन सा मोमेंट था लाइफ का व्हेन यू फाइनलाइज्ड कि अच्छा अब मुझे बॉडी बिल्डिंग में जाना है? वॉज इट सम मोमेंट इन लाइफ, अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जब आपको रियलाइज़ हुआ हो कि मुझे एक्चुअली यही करना है फुल फ्लेज प्रोफेशनली, या फिर कोई रोल मॉडल या इंस्पिरेशन था जिसने मोटिवेट किया हो कि अच्छा इस लाइन में जाना है, जिसको आइडियलाइज करते हो? तो
क्या था एग्जैक्टली किस पॉइंट पे रियलाइज़ हुआ कि ये पक्का है, ये फील्ड शॉर्ट पक्का है, इसमें ही जाना है, एफर्ट्स डालने हैं एंड देन यू हैव टू एक्सेल इनटू इट. सो व्हाट वाज दैट मोमेंट और व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर रोल मॉडल जिसने वो स्पार्क क्रिएट किया? It was in 2019, December 2019, when I first competed in a local show that was Vijay Classic. दिसंबर में हुआ था वो शो, and I competed in that in men's physique category and classic category. Although I don't placed, but that gave me a vision, and backstage a lot of competitors motivated me and उन्होंने बहुत बोला कि you have good potential in this field. वहीं से मेरे को स्पार्क आया, बिकॉज स्टार्टिंग से क्या था, इनसिक्योरिटीज़ थी एंड कन्फ्यूजन था कि मैं कर लूँगा नहीं कर लूँगा. बट जब मैंने उस कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करा, जितना मेरे को पता था मैंने उससे अपने आप को तैयार करा, एंड आई गॉट रेडी इन 8 वीक्स. एंड मैंने अपनी बल्किंग फेस करी एंड देन कटिंग फेस करी. सो कटिंग फेस मेरा 8 वीक का था. देन वहीं से मेरे को एक कॉन्फिडेंस मिला, स्पार्क मिला कि हाँ अभी मेरी कोई प्लेस नहीं आई, बट नेक्स्ट टाइम मैं और अपने आप को बेटर लेके आऊँगा और अच्छा लेके आऊँगा. एंड बैक स्टेज एक्चुअली बहुत लोगों ने मेरे को मोटिवेट करा था, बहुत ज़्यादा अच्छे कंपेटिटर्स थे. एंड एक एथलीट्स में जो टीमशिप होती है वो थी एथलीट्स के अंदर एंड वो दिख रही थी. सो वहीं से मेरे को स्पार्क लगा कि नहीं अब तो एंड तक इसको करना ही करना है. मेरा ये रहा था कि मैंने कब सोचा है कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग में ही आगे जाना है. सो बेसिकली एक तो मेरा रोल मॉडल था एंड्रू ड्यू. So he was around 16 and 17. So and उसने 16 and 17 and then I saw him, he was 21 years old. तो उसने जो 4-5 years में कहाँ से वो आया था, वो एक मैनुअल वर्कर था. मैनुअल वर्कर से किस पोजीशन पे आया था. एंड बॉडी बिल्डिंग इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव गेम. उसने इतना कुछ करके भी कैसे वो वहाँ तक पहुँचा, वो मेरे को बहुत इंस्पायर करता था. एंड सेकेंडली बॉडी बिल्डिंग और ये भी रहता है कि क्लाइंट्स को भी ट्रेन करना होता है. ऑनलाइन मेरे पास क्लाइंट्स भी आए, मैंने उनको ट्रेन करा, उनको मैंने चेंजेस करे, फिर उनसे और आए, तो ऐसे मैं डालता गया. तो यहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिलती गई. सो आगे क्या हुआ कि आगे एक कंपटीशन आया बॉडी बिल्डिंग का. सो इन 15 और 20 डेज़ वो एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन थी मेरी. आई वॉज अराउंड 88 kgs. सो आई कट इट डाउन टू अराउंड 80 kgs एंड इन ओनली 15 to 20 days. एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन देखिए लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करा. देन आई स्टेप्ड ऑन बॉडी बिल्डिंग स्टेज एंड मेरे को हाँ एक्सपीरियंस बहुत मिला. वहाँ पर बहुत लोग मिले एंड उन्होंने मेरी एज भी पूछी. देन वहाँ पर सारे बड़े थे अराउंड 25-26 एंड हम उज्जवल और मैं खाली वहाँ पर छोटे थे. तो मैं बहुत लोगों ने अप्रिशिएट करा कि आप लोग बहुत छोटे हो और आगे जाके बहुत अच्छा करोगे. Alright, so now let's move on to our third question, which is, I guess, a very important question, especially for those students or those learners जिनका career option एक नॉन स्टीरियोटिपिकल ऑप्शन है. यानी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आमतौर पे लोग फॉलो करते हैं, जैसे इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना या सीए बनना या फिर आईएएस या आईपीएस की तैयारी करना, जिसमें उनको पता है कि अगर वो नहीं कर पाए तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ लाइफ में कर लेंगे, राइट. एंड प्लस इस केस में व्हेन यू डिसाइडेड कि मुझे बॉडी बिल्डिंग फॉलो करना है, सो जिन लोगों को नहीं पता है आई वुड लाइक टू टेल देम, बॉडी बिल्डिंग इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स स्पेशली इन इंडिया. क्योंकि एक तो यहाँ पे मेंटोरिंग बहुत लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग. चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं बट इट माइट टेक अप प्रॉबेबली अनदर कपल ऑफ फ्यू ईयर्स, मे बी 5-10 years टू ग्रो ऑन टू अ डिफरेंट लेवल फॉर बॉडी बिल्डिंग. यानी जितना कमर्शलाइज्ड क्रिकेट है शायद उतना कमर्शलाइज होने में बहुत समय लग जाएगा बॉडी बिल्डिंग को, प्लस उतनी अवेयरनेस, उतनी नॉलेज आना. बट देयर आर अदरवाइज लॉट ऑफ पीपल वो वर्किंग अप फॉर बॉडी बिल्डिंग. हाउएवर डिस्पाइट फॉर द फैक्ट कि एक बहुत नॉन यूजुअल, एक अनयूजुअल सा एक करियर ऑप्शन चूज़ कर रहे थे तुम लोग, तो क्या ये था माइंड में कि नहीं हो पाया तो, नहीं कर पाए तो, बाई चांस फेल हो गए तो, फेलियर हो गया तो क्या ऐसा था? क्या थोड़ी नर्वसनेस, एंग्जाइटी इस चीज़ को लेकर शुरू में थी या बाद में थी, या फिर तुमने पहले से ही कोई बैकअप प्लान डिसाइड किया था? और जो लोग स्पेशली अगर किसी क्रिएटिव फील्ड को चूज़ करते हैं जो कि थोड़ा अनयूजुअल है, जैसे कोई सिंगर या डांसर या कोरियोग्राफर बनना चाहता है, तो क्या उन्हें एक बैकअप जो प्लान है, प्लान बी, वो रखना चाहिए? क्या उसका फ़ायदा है या नहीं है? सो इस बारे में एक बार बात करते हैं कि इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बैकअप प्लान, और एंड डू यू एक्चुअली हैव ऑन रियल ग्राउंड्स सम काइंड ऑफ एंग्जाइटी और नर्वसनेस व्हेन यू थिंक कि मेरा ऑप्शन एक नॉर्मल ऑप्शन नहीं है? और उसका रिएक्शन डेफिनेटली आपको ये देख के पता लग जाता है जब पेरेंट्स को आप ये चीज़ बताते हो कि अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया.
लेकिन अगर आप सपोज़ करो ये बोलते हो कि मुझे बॉडी बिल्डर या मुझे म्यूजिशियन या मुझे बॉक्सर या मुझे रेसलर, ऐसा कुछ बनना है जो नॉर्मली लोग ऑप्ट नहीं करते, या जो किसी क्रिएटिव फील्ड या किसी स्पोर्ट्स फील्ड से बिलोंग करता है, ऐसा कोई करियर ऑप्शन, तो जनरली जो रिएक्शन होता है वो ये होता है, अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं। सो इस केस में एग्जैक्टली क्या चल रहा था तुम दोनों के माइंड में, लेट्स अंडरस्टैंड। So yes, there were a lot of insecurities. जैसा सर ने बोला कि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत एक्सपेंसिव गेम है, प्लस हार्ड वर्क एंड पेशेंस मांगता है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मांगता है। इट्स नॉट लाइक कि आपने खाली मनी लगाई और हार्ड वर्क नहीं करा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यू हैव टू डू एवरी काइंड ऑफ थिंग फॉर दैट। सो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी स्टार्टिंग में ही। जब मैंने इवन ट्रांसफॉर्मेशन कर ली थी, मुझे बहुत लोगों ने वो बोला, बट स्टिल एक माइंड में रहता है कि ये तो बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं, कल ना बोले लोग कि आपने अच्छा करा है, बुरा करा है। सो आई वॉज बिट कन्फ्यूज। बट जैसा कि मैंने लास्ट उसमें बताया कि जब मैंने कम्पीट करा था 2019 में एंड अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्म करा था, देन आई गॉट द श्योरिटी कि हाँ यही है एंड दिस इज़ ऑल इट इज़। ऐसे ही कंटिन्यू रखा मैंने कि हाँ इसको ही करना है, यही करना है एंड इसमें ही आगे। सो स्टिल एक माइंड में ये रहता है कि हाँ अब सब कुछ सेट हो गया, एक पाथ मिल गया है, एक डायरेक्शन है, अब आपको वर्क करना है। बट स्टिल हम कोई भी चीज़ 100% श्योर नहीं होती कि आप इसमें कर जाओगे। सो यू नीड टू हैव अ बैकअप प्लान। एंड आप खुद अपने स्पोर्ट में भी कुछ नहीं कर रहे एंड देन घर वालों ने जो कहा वो भी कुछ नहीं कर रहे। सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ बैकअप प्लान। लाइक अगर इसमें 1% आप 99% आप श्योर हो आपका हो जाएगा एंड आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो, बट 1% चांस रहता है कि नहीं होगा, एंड फॉर दैट यू मस्ट हैव अ बैकअप प्लान। बॉडी बिल्डिंग, म्यूजिशियन, डांसर और कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन कोई भी अगर बनना चाहेगा, देखो रिस्की तो है एंड घर वाले भी इजीली सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो इंजीनियर डॉक्टर की तरह इजीली उसको जॉब मिल जाएगी। चांसेस बहुत कम रहते हैं पॉसिबिलिटी के। बट उस पर है कि अगर आपके पास टैलेंट है एंड अपना पूरा टाइम कर रहे हो तो एंड आपको प्रॉपर सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, एंड इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड सेकेंडली बैकअप ऑप्शन की बात आ जाती है। बैकअप ऑप्शन देखो होना चाहिए। बैकअप ऑप्शन ये नहीं है कि अगर आप म्यूजिशियन है तो आप बीटेक कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर आप म्यूजिशियन हो तो म्यूजिशियन की उसी में ही कोई डिग्री कर लो, जिससे आपको क्या मिलेगा कि स्कूल में हो गए या फिर आप अपनी वो म्यूजिशियन भी प्रॉपर फॉलो कर लोगे एंड साथ साथ आप जो आपको इंटरेस्ट है आप उसी में जॉब करोगे एंड आपका एक बैकअप ऑप्शन होगा। जैसे मेरा है, मुझे बॉडी बिल्डिंग एंड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस से प्यार है, तो मैंने भी बैकअप ऑप्शन में बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स रखा है। देन मैं मास्टर्स करूँगा, मैं डाइटिशियंस बन जाऊँगा। गवर्नमेंट का पेपर देकर मेरे को लाइसेंस मिलेगा। जैसे डॉक्टर्स को लाइसेंस मिलता है ना सर्जरी का, वैसे ही मेरे को लाइसेंस मिलेगा डाइटिशियंस के लिए। तो मेरा इंटरेस्ट जहाँ पर है कि डाइट ट्रेनिंग, तो मेरा इंटरेस्ट है तो वही है डाइटिक्स में भी, और मेरा साथ साथ इंटरेस्ट बॉडी बिल्डिंग उसमें भी है। तो दोनों एक तरह से हल्का सा सेम ही है। बॉडी बिल्डिंग अलग हो गया, वहाँ अलग इस में हो गया कि वहाँ पर स्टेज पे जाना होता है, बट एट द एंड सेम प्रोटोकॉल्स है ना दोनों में, डाइट एंड ट्रेनिंग एंड ये सब कुछ। एंड डाइटिशियन में भी यही होता है। तो आप कोई भी ऐसा पाथ फॉलो करो। अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आप फिजिकल एजुकेशन में आपने डिग्री ले ली, एक बैकअप ऑप्शन होना जरूरी है। ऑलराइट, सो गाइस कमिंग अप टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने 11th क्लास में आने पर क्या स्ट्रीम ऑप्ट की, और आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंसेस थे नॉर्मल अप्रोच में या जो जनरल अप्रोच होती है कि अधिकतर लोग क्या करते हैं उस स्ट्रीम में। जैसे फॉर इंस्टेंस कॉमर्स फील्ड में आने वाले अधिकतर लोगों का प्राइम टारगेट सीए होता है कि हम कोशिश करेंगे सीए के लिए एटलीस्ट ट्राई करें, या पहला जो थॉट आता है माइंड में वो सीए का आता है। ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करने पर आइडियली हमारे माइंड में लगता है कि यार ये बच्चा जो है ये आईएएस या आईपीएस की तैयारी करने वाला है, ठीक है, यानी यूपीएससी की प्रिपरेशन की का इसका टारगेट होगा मोस्ट प्रोबेबली। उसके अलावा जनरली हमारा होता है कि नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करते हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने के लिए आगे एमबीबीएस करते हैं, एमडी करते हैं और डिग्रीज़ करते हैं, इनकी जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ होती हैं। तो ये हमारी जनरल अप्रोच होती है नॉर्मली जो लोग करते हैं। तो आप लोगों ने जिस फील्ड में एंटर किया क्लास 11th में, उस फील्ड से आपके बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में जो डिफरेंसेस थे उस टाइम पे माइंडसेट कैसे क्या था, कि क्लास का सिनेरियो क्या था उस टाइम, जो आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हुआ करते थे उसमें मेजॉरिटी जनरल थॉट प्रोसेस क्या रहता था और आपका थॉट प्रोसेस क्या था, इस बारे में अब एक बार हम बात करते हैं। So I took PCM in my 11th standard, and then most of the guys who were in 11th standard who opted for PCM basically were trying to be an engineer in near future, but I didn't know if I will be going to do engineering or that stuff, because I was at that time getting very
very motivated in the fitness industry and the field. So most of the time I used to think that I'm basically separate from them because they all are aiming the same. They all are aiming for the moon and I am aiming for the stars. So that hit me up very well. Like I am the odd one. कि मैं ही अलग क्यों, मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं क्यों नहीं कर रहा. But yeah, I kind of have a confidence in myself कि yes मैं कर लूँगा, कोई नहीं अभी है, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है अगर मैं हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन करूँगा. सो आपको ना वो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. एंड लाइफ के अंदर एवरीथिंग इज़ दैट. वो जो छोटी सी स्पार्क है ना आपके अंदर जो एक टाइम पे भी कह रही है कि येस यू कैन, आप कर लोगे. बस यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस. 11th में मैंने ऑप्ट करी थी मेडिकल PCB. सो बेसिकली मैंने PCB इसलिए ऑप्ट करी थी कि मैंने बताया था आपको 10th में मैंने रिसर्च करी थी. मेरे को 10th में हो गया था कि मैंने आगे करना क्या, मेरे अंदर से आने लग गया था. क्योंकि 9th में मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा था एंड 10th में भी स्टार्टिंग में लास्ट में मेरे को हो गया था मेरे को करना क्या लाइफ में. तो वो डाइटिशियन का लगा तो मैंने डाइटिशियन के लिए PCB जरूरत है, मेडिकल जरूरत है, मेडिकल लाइन है डाइटिशियन की, तो इसलिए मैंने PCB ज्वाइन करी. 12 स्टूडेंट्स थे मेडिकल में, मैक्सिमम वर्स गर्ल्स एंड ओनली 3-4 वर बॉयज़. तो वहाँ पर ये था कि अगर मैम पूछती थी ना, मैम को लगता था कि सारे MBBS करेंगे, तो मैम पूछती थी कि हाथ खड़े करो किस किस से डॉक्टर बनना है. तो 11 के 11 बच्चे हाथ ऊपर करते थे, मैं अकेला होता था जिसका हाथ नीचे रहता था. एंड मैम पूछती थी आपने क्या करना है, तो मैं बोलता था मैंने डाइटिशियन बनना है, मेरे को आगे MBBS नहीं करनी. तो सब बच्चे ऐसे होते थे कि आगे जाके इसका क्या होगा, ये होगा वो होगा. मेरे को लो फील तो कराते थे बट मैं होता नहीं था क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा कैरियर है एंड मुझे मेरी लाइन पता है एंड मैं इसमें सक्सेस होऊंगा. तो एक वो होना चाहिए. ओके सो गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. स्पेशली अगर आपका जो करियर ऑप्शन है वो थोड़ा यूजुअल ऑप्शन से हटके है. सो क्वेश्चन ये है कि आपने पहली बार कन्फ्रंट कब किया पेरेंट्स को कि मुझे इस फील्ड में एंटर करना है. क्लैरिटी होने के बाद जब आप श्योर थे कि अच्छा यही करना है, बॉडी बिल्डिंग ही करनी है, तो कब पेरेंट्स के सामने ये ऑप्शन रखा आपने कि मैं ये करना चाहता हूँ, और सामने से पेरेंट्स का रिएक्शन एग्जैक्टली कैसा आया? क्या वो सपोर्टिव थे या नहीं थे? इन केस अगर वो नहीं थे तो क्या आप उन्हें मना पाए या नहीं मना पाए? एग्जैक्टली क्या सिनेरियो था, या उस टाइम का जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है एक अगर पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं तो बहुत पॉजिटिव रिएक्शन आता है. जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी. बट एक नेगेटिव कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर वो नहीं होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा. गजब बेइज्जती है. तो उस टाइम पे देन हाफ ऑफ द डीमोरलाइजेशन कम्स फ्रॉम देयर, लाइक हाफ ऑफ द एंटायर जो आपका माइंडसेट नेगेटिव बनता है वो उसी वजह से बनता है कि जब मेरे पेरेंट्स ही मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज़ में, सो व्हाट विल आई डू लेटर ऑन, एंड दैट्स अ वेरी मेजर ड्रॉबैक. तो तब क्या हुआ था, क्या सिनेरियो था, उस बारे में एक बार थोड़ा सा बात करते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स भी समझ सके एग्जैक्टली क्या कॉन्सिक्वेंसेज वो फेस कर सकते हैं इन केस अगर वो कन्फ्रंट करते हैं अपने पेरेंट्स को. तो व्हेन आई फर्स्ट कम्पीटेड बैक इन 2019, देन मैंने वो शो खेल लिया एंड उसके कुछ दिनों बाद मैंने अपने घर वालों को बोला कि मुझे अच्छा लगता है ये एंड मैं इसे प्रोफेशनली करना चाहता हूँ. हालांकि तब भी एक वो था बिकॉज घर वालों को इतना नहीं पता होता बॉडी बिल्डिंग या किसी और स्पोर्ट के बारे में, बिकॉज दे ओनली नो डॉक्टरेट एंड बीटेक. दे इवन नो दैट कॉमर्स एंड आर्ट्स भी कोई फील्ड है. इवन मेरे घर वालों को तो इतना नहीं पता कि कॉमर्स एंड आर्ट्स में भी फ्यूचर है एंड नथिंग. सो आई टोल्ड देम कि मेरे को ऐसे करना है. तो घर वालों का रिएक्शन यहाँ था, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, आगे कोई और डिग्री करनी पड़ेगी तेरे को. सो ऑल द नेगेटिव स्टफ जो कि मैंने एक्सपेक्ट पहले से ही करा था कि वो आएगा. सो दैट गोज़ विद इन द प्रोसेस. जब जैसे जैसे आगे जाओगे ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी, टाइम लगेगा. स्टार्टिंग में सब नेगेटिव होंगे बट धीरे धीरे आगे जाके ये चीज़ें चेंज होंगी. सो आई कंटिन्यू, क्योंकि जिम जाना कंटिन्यू था एंड डाइट कंटिन्यू थी. आई वॉज एबल टू गेट क्लाइंट, सो मनी की मेरे पास कोई इशू नहीं थी एंड होपफुली मेरे पास मनी की इशू नहीं रही है बिकॉज मेरे को टाइम टू टाइम क्लाइंट्स अपने मिलते रहे हैं हमेशा से. सो आई कैरी ऑन लाइक दिस एंड देन आगे कॉम्पिटिशन आए, मैंने उनमें कम्पीट करा. देन आई अगेन टेल माई मदर कि मेरे को इसमें ही करना है मम्मा एंड ये सब है. एंड देन द सेम रिएक्शन जो पहले था वो अभी भी है कि नहीं, इसमें कुछ वो नहीं है, फ्यूचर एंड स्कोप नहीं है, क्या करेगा तू, इसको शौक के लिए कर ले या वैसे कर ले एंड बहुत एक्सपेंस भी लगता है इसमें जैसे एंड इतना नहीं कर पाएगा तू एंड कोई सारी नेगेटिव चीज़ें थी. सो ऐसा नहीं है कि घर वाले मान गए, वो चीज़ अभी भी चल रही है
एंड मेरे को लगता है मैं आगे शो खेल के आऊँगा तो वापस से ऐसा ही होगा. सो दिस थिंग एक्चुअली कंटिन्यूज. आपको अपना स्टैंड खुद का लेना पड़ेगा. जब तक आप स्टैंड नहीं लोगे तो फिर तो कोई भी नहीं देगा ना. आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, आप उसमें ही करो, अपने आप को प्रूव करो. सबसे पहले आपको अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ. दैन अपना स्टैंड लो. कभी कभी आपको एंटी भी होना पड़ता है घर वालों के, विच आई थिंक इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज आप में वो एनर्जी है एंड इतना पैशन है कि हाँ, इतना जज्बा है आप में, बेसिकली पागलपन है कि आप वो कर सकते हो. एंड उसके लिए मैं किसी के आगे भी स्टैंड कर सकता हूँ, चाहे जो भी बैरियर हो मेरी लाइफ में, चाहे फाइनेंशियल हो या सपोर्ट चाहिए हो बेसिकली. सो आप उसे कर सकते हो. फर्स्टली मैंने अपनी मदर को बताया था बॉडी बिल्डिंग के बारे में, तो मैं उनको इंस्टाग्राम पे दिखाता रहता था कि ऐसे ऐसे ऐसे. मैं देखता रहता था तो मम्मी पीछे से आती थी तो पूछती थी क्या देख रहा है तू. तो मैं बोलता था मैंने भी इनकी जैसे करना है. देन मैंने उनको बताया स्पॉन्सरशिप्स का कि ऐसे एथलीट्स को स्पॉन्सरशिप मिलती है एंड अगर वो कॉम्पिटिशन जीतते हैं तो प्राइज़ मनी रहती है एंड ऑनलाइन क्लाइंट्स बनते हैं, तो ये एक प्रॉपर एक प्रोफेशन भी हो सकता है. देन उनका ठीक था रिएक्शन, ओके था कि वो इतने होते. मेरी मदर बहुत कूल है, उनका इतना नहीं था. उनको था जिस लाइन में जाए अच्छा करे. एंड उनको पता था कि मेरा बैकअप डाइटिशियन है तो इनकी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी. बट प्रॉब्लम इज़ फादर. तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? फादर का बिल्कुल अपोजिट था. उनको था कि इतनी बॉडी बनाएगा कि अच्छे नहीं लगते, ये नहीं लगते, बाउंसर ये सब. उनकी मतलब एक जनरेशन गैप नहीं होता यार, जनरेशन गैप है. एंड वो जनरेशन गैप कभी फील नहीं कर सकते वो लोग, कभी भी. तो वो जनरेशन गैप है बेसिकली. तो इतना कुछ अभी भी सपोर्ट नहीं है. तो अभी मेरा कंपटीशन भी था, देन देवर ओके, यूजुअल था. कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं था कि ऐसा सपोर्ट नहीं था मुझे. सो बात ये है कि घर वाले चाहे आपको सपोर्ट करें ना करें, आपको अपने आप को सपोर्ट करना ही करना है, चाहे कैसे भी हो. अब ये थोड़ी ना कि अगर आपका प्रोफेशन है, आपको पैशन है एंड आप घर वालों की वजह से छोड़ दो. ठीक है, अगर आपके घर वाले, चलो एक 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 बहुत सारे इसमें डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं. चलो बहुत सारे घर वाले ऐसे होते हैं वो इसलिए नहीं सपोर्ट कर पाते क्योंकि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम होती है. ठीक है. सेकंड ऑप्शन होता है कि स्टीरियोटिपिकल माइंड होता है, थोड़ा वैसा जनरेशन गैप रहता है. अब जो फाइनेंशियल वाला है उसमें है कि चलो आपको पढ़ा रहे हैं एंड आपको ट्यूशन फीस जा रही है, आपको घर में रखा हुआ, आपको प्रॉपर अच्छी तरह से पाल रहे हैं, देन ओके है. अब आज भी मेरे घर वाले मुझे अभी भी मतलब इतना सपोर्ट नहीं करते. स्पेशली मम्मी कर देती है बट फादर अभी भी नहीं करते. उनको लगता है क्या है, बस वो इसलिए थोड़ा बहुत मेरे को सपोर्ट है कि मैं डाइटिक्स कर रहा हूँ साथ साथ. ये सपोर्ट नहीं था मेरे को कि मैं खाली कि पर्सनल ट्रेनर या फिर खाली सिर्फ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस में जाऊँ, वो सपोर्ट मेरे को प्रॉपर नहीं था. उनका ये था कि एट द बैक ऑफ द माइंड मेरे को डाइटिशियन का करना पड़ेगा. उनको बनाना तो मेरे को इंजीनियर था बट वो भी मैं लड़के हुआ था, बट मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था. तो इस वजह से चलो फिर भी वो कहते चल तू डाइटिक्स कर ले, बट तूने इस लाइन में ऐसे नहीं जाना, क्योंकि उनका भी था कि बहुत रिस्क है एंड एकदम सिक्योर फ्यूचर नहीं है इसमें. सो ठीक है, मैं उस बात पे एग्री रखा. एंड अब जनरेशन गैप है.